Good afternoon, everyone. Last lecture, we started with a new chapter, determinants. And I think we have completed till question number 3, right? And now we have to start with the new concept of finding the minors and cofactors of determinant. Okay. So one, two problem, three problems are there. Then we will complete this. This will be the second lecture of determinant. Let's learn how to find out minors and cofactors. What is the meaning of minors and cofactors? I'll give you two examples. With the help of these two examples, you'll be able to understand what exactly are minors and cofactors. See, first example we will see of 2 by 2 determinant. Suppose we have 1, -3, 2, 4. This determinant is given to us. Okay. And then we are asked to find out minors and cofactors. Right? Minors and cofactors. Okay, so we were looking at minors and cofactors of this determinant. Now, whenever we are asked minor and cofactor, we first find out minors because cofactor depends upon minors. Okay, so minors are denoted by capital M. Okay, in the last lecture, I told you that every determinant can be written as rows and columns. So every element of the determinant is represented by a specific position. Considering this determinant as determinant A, okay, then this position is A11, first row, first column. Normally we write elements with the small alphabet. So A11, this is A12, then A21, and then A22. So for every element, we have a minus associated with that. Yes. So as we have four elements here, we will have four minors as M11, M12, M21, and M22. Fine. Now, how do we calculate it? It's very simple. See, what we will do is to calculate minors or M11. So M11 को calculate करने के लिए, as it is 1 1, we will hide first row and first column. Whatever will be left, that will be M11. तो एग्जाम्पल में देखेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ऐड किया तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स अपने को? You will get 4, right? After adding the first row and first column, not in terms of A, tell me in terms of numbers. Okay, so फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया तो 4 बच गए. ऐसे ही आप बताओ M12 क्या होगा?
For M12, we will hide first row and second column. Then the answer will be 2. After that, 2, 1, second row, first column. Answer will be -3. And then 2, 2, second row, second column. Then the answer will be 1. Everyone understood how do we find out minors for 2 by 2 matrix? Fine. So these are minors. Now after completing the minor, on the same line at the adjacent, we will write cofactors. Okay. Cofactors are denoted by C. तो C11 जितने माइनस होंगे उतने कोफैक्टर्स. C12, C21 एंड C22. ठीक है. अभी कोफैक्टर का एक स्पेशल फॉर्मूला है. द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, that cofactor of any position is equal to ij, means any position 1 1 1 2 whatever it is equal to same position minor. मतलब C11 है तो M11, C12 है तो M12, C21 है तो M21, that multiplied by -1 to the power of a plus j, I plus j. This is the formula for I, Cij, that is cofactor. अभी एवरी टाइम पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई जे एंड सॉल्विंग इट, थोड़ा हम लोग इसको ना इसका पोस्टमार्टम करते हैं. लुक एट दिस नंबर, दिस इज -1 टू द पावर आई प्लस जे. देखो आई और जे तो पॉजिटिव नंबर ही होंगे ना, ऑब्वियसली, बिकॉज 1 1 1 2 1 3 यही होने वाले, तो दे मस्ट बी नेचुरल नंबर्स. तो -1 कैसा नंबर होता है कि अगर -1 के पावर में इवन नंबर है, even numbers 2 4 6 8, then -1 will give you +1, right? And if you have -1 raised to odd number, तो फिर वो -1 देगा. इतना क्लियर? ठीक है. तो इससे क्या हम लोग एक मेकआउट कर सकते हैं कि ये देखो, ये जो -1 रेज टू आई प्लस जे है, इट विल बी आइदर +1 और -1. अगर वो +1 हुआ तो +1 इंटू एम आई जे विल बी एम आई जे. यस और नो? +1 into Mij will be Mij, and when it is odd number, then it will be negative of Mij. So we will conclude, or we can just make another formula that Cij is Mij or Cij is negative of Mij, provided that positive Mij when I plus j is even and negative Mij when I plus j is odd. Understood? Yes? तो अभी हमको ये इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम क्या करेंगे, हम लोग उसको डायरेक्टली इसका यूज करके सॉल्व करेंगे, राइट? फाइन. सो लेट मी सॉल्व दिस सम नाउ. तो ये सम में क्या होगा, देखो बताओ. 1 + 1 क्या होता है बच्चों, बताओ. 1 + 1 इवन. सो 1 + 1 इवन मतलब सेम रहेगा. 1 + 2 3 ऑड, इट विल चेंज.
2 plus 1, 3, odd, it will change. 2 plus 2, even, it will be same. Same matlab 4 will remain 4, 1 will remain 1. Change matlab 2 will become minus 2, minus 3 will become 3. So if you write, like this adjacent way, then it is very easy to write down the corresponding values, yes or no. नहीं तो क्या होगा, नहीं तो क्या होगा, नीचे अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, आपको कभी कभी ऐसा ड्रैग करके नीचे लिखने में आपसे मिस्टेक हो सकता है, राइट. So that is why I always have a habit of writing like this. Please complete it. So I hope everyone understood this minus and cofactors how to do it. Now since it was a 2 by 2 element determinant, it has only 4 elements, so we have 4 minors here. Now in case of 3 by 3, we may have 9 elements, right? Then we will have 9 minors, right? So let's start doing now the problem from the textbook. So I think it's question number 4. Okay, so we will first write down the elements. D, determinant. D is equal to 2 minus 1 3, then 1 2 minus 1 5 7 2. Fine. Okay, this is my determinant D, and now we will find out minus first. तो आप लोग भी ये कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हेडिंग डालो माइनर्स, and then you write down that full numbers m11, m12, m13, m21, m22, m23, m31, m32, m33. Okay, like this is minor. थोड़ा स्पेस देके फिर यहाँ पर राइट साइड में, क्योंकि देखो को फैक्टर में कैलकुलेशन नहीं होगा, को फैक्टर तो डायरेक्टली हम माइनर को ही लिखेंगे, बस प्लस और माइनस आएगा. सो थोड़ा उसको साइड में लिखने का, कि माइनस में अगर कैलकुलेशन के लिए स्पेस रिक्वायर्ड है तो वी कैन यूज दैट. सो हियर आई विल राइट करस्पॉन्डिंग cofactors C11, C12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Complete this table first. Come on, fast. Let me know if you have done. ये पूरा लिख लिया आप लोगों ने symbols. Okay. Yes, Rahul. What does that mean? Okay. So let us start finding out these minus now one by one. देखो 1 1 मतलब you will hide the first row and the first column, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे 3 by 3 के. अभी हम डिटर्मिनेंट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे. होगा तो वो डिटर्मिनेंट ही
2 माइनस 1 7 2 का, बट अभी हमने इतना डिटर्मिनेंट प्रैक्टिस कर लिया है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 माइनस 7 इंटू माइनस 1 -7, समझ रहे हैं सबको? So it will become 4 plus 7 and that is 11. Okay, like this. First row, now second column. तो second column is this. इसको हाइड कर दिया, फिर जो बचा उसके अंदर तो 2 1 ज़ा 2, 5 इंटू माइनस 1 -5, सो 2 माइनस -5, 2 plus 5 becomes 7. Next, first row, third column. First row, third column. 7 1s are 7, 5 2s are 10. 7 minus 10 minus 3. So this is first row, third column done. अभी next है 2 1. 2 1 means second row and first column. Second row, first column. So 2 into minus 1 minus 2, 7 3s are 21. So minus 2 minus 21 minus 23. Next, 2 2. So second row, second column. Then it will be 2 2s are 4, 5 3s are 15. So it is 4 minus 15 equal to minus 11. Okay. After that, 2 3. Second row, same, third column. Then it will be 7 2s are 14, 5 into minus 1 is minus 5, 14 minus minus 5, that becomes 14 plus 5, so it's 19. 3 1 now, third row, first column. So third row is this and first column. So minus 1 into minus 1 1, 2 3s are 6. पहले किसको मल्टीप्लाई करना है वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको आंसर 5 आ जाएगा. इट शुड बी -5. हाउ कम इट इज 5? पहले लेफ्ट से राइट में राइट से लेफ्ट में जाते हैं ना, नीचे से ऊपर. पहले ऐसे होता है हमेशा, फिर ऐसे होता है. सो ये हो गया 3 1. नाउ 3 2. सो -1 into 2 -2, 1 3s are 3. So -2 -3 -5, and the last one 3 3. Third row, third column. तो अभी यहाँ पर क्या बचेगा? 2 2s are 4, 1 into -1 -1. तो 4 minus -1, 4 minus -1, that will give us +5. Okay. Now अभी देखो 2/2 में हमको समझ गया कि फर्स्ट सेम, चेंज चेंज सेम. तो मैंने एक रूल ही बना लिया, 2/2 में सेम, चेंज चेंज और सेम ऐसा होता है, क्योंकि इवन ऑड ऑड इवन आता है, राइट. अभी यहाँ पर देखो, बताओ मुझे, 1 + 1 इवन ऑड, इवन या ऑड? कम ऑन फास्ट. इवन. 1 + 2 3 odd, 1 + 3 4 even, 1 2 + 1 3 odd, 2 + 2 4 even, 2 + 3 5 odd, 3 + 1 4 even, 3 + 2 5 odd, 3 + 3 6 even. So can you see even odd even odd even odd? We are getting continuous. So even मतलब same, odd मतलब change. So हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवन वाले सब लिख देते हैं, सेम वाले. या तो आप एक एक करके लिखना है तो चेंज कर.
हर बार आपको याद रखना पड़ेगा, पहला सेम, दूसरा चेंज, ऑल्टरनेट, राइट। सो उसमें क्या होता है, कभी कभी मिस्टेक कर लेते हैं, इसके लिए लेटर्स राइट ऑल इवेंट टुगेदर, फिर चेंज वाले को बाद में लिखेंगे। सो it is going to be 11, then -3, then -11, -5 एंड +5। अभी चेंज, -5 है तो इधर +5, 19 है तो इधर -19, -23 है तो +23, +7 है तो -7, एंड दैट्स ऑल। हैव यू ऑल अंडरस्टूड माइनर्स को फैक्टर्स कैसे करना है? Anyone who have any problem in understanding minus cofactors? Jayashree, who joined yesterday, Osama, any problem? Okay. So now I think everyone can manage minus and cofactors for any of the determinant, right? So you have to, minus जो है वो अच्छे से एकदम समझ के करना है। C13 का कुछ मैंने गड़बड़ लिखा है क्या? C13, what happened? Saisha, C1 plus 3 is 4, na? 4 is even it's same. वो 1 3 को 3 को नहीं देखने का ऑड है, सम को देखना है ना, 1 + 3 करना है। सम शुड बी इवन, सम शुड बी ऑड। हाँ वो कभी कभी होता है, ऐसा लगता है अरे 2 में इवन है, 1 2 नहीं देखना। देखो 1 2 दिख रहा है इवन नंबर 12, बट वो 12 नहीं है, इट्स 1 + 2, सो दैट बिकम्स 3। ओके फाइन। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5, सी हियर, it looks a big problem but it's very simple। सी क्वेश्चन, इवैल्यूएट ए। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद बोला ऑल्सो फाइंड माइनर एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो। सेकेंड रो मीन्स वी हैव टू फाइंड M21, M22, M23, C21, C22, C23, दैट्स ऑल, राइट। सो चलो पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 5, मुझे इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करके बताओ। स्टार्ट डूइंग इट, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 5 का डिटर्मिनेंट बताओ। ए इक्वल टू दिया हुआ है, आप इसका आंसर मुझे बताओ ए का। एंड नाउ यू कैन डू द डायरेक्ट ऑल्सो, लाइक बार बार वो डिटर्मिनेंट 2/2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैं अभी करने जा रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस। सो आई विल राइट +2 एंड डायरेक्टली जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 -20 +3 -42 -4 +5 30 -0। So 2 into -20, 3 into -46, 5 into 30, -40, 3 6 are 18,
plus 150. So then it is going to be 8, 4 plus 3, 7. So it is minus 28. तो ये आंसर आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए. Okay, everyone got the answer A. Now we have to find the minus and cofactors of the second row only. So minus and cofactors. Start. Minus will be M21, M22, M23. Second row, na? Cofactors will be C21, C22, C23. All of you just use this determinant and get the value of all the minus. 2 and then 1. So in that case it will be 21 minus 25, right? First one, 21 minus 25, minus 4. Then second row, second column, minus 14 and minus 5, minus 14, minus 5. Minus 19 and finally 2 3 last wala. So let me 2 5s are 10 minus of minus 3, 10 minus of minus 3, so it will be 13. Okay, now we will write down the cofactors. How? 2 plus 1 3, 3 is odd, odd matlab change, so minus 4 will become plus 4. 2 plus 2 4, even, even matlab same, so it's minus 19. 2 plus 3 is odd, so it will become minus 13. Okay, so this way we have got the minus and we have got the cofactors also. Now if you look at the question after that, so we got the determinant, we got the minus and cofactors of the second row. Now they are saying verify this. First equal to value of A, this is equal to value of A, where M1 are minus, जो M दिख रहे हैं वो माइनस है, C दिख रहे हैं वो कोफैक्टर्स है, और जो स्मॉल a दिख रहे हैं वो एलिमेंट्स है. ये A है ना, तो ये A11, A12, A13, समथिंग लाइक दिस. तो बहुत ही सिंपल है, A लो, उसका लेफ्ट हैंड साइड लो और सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो. A part, left hand side, this is equal to, question I am writing, A21 M21 plus A22 M22 A23 M23. Okay, so let us just substitute. A21 means element, M मतलब माइनर, तो डिटर्मिनेंट A21 604 है ना, मैं डायरेक्टली एक एक करके लिखता हूँ. ये माइनस ऐसा ही है, ये 6 है, ये 0 है और ये 4 है. पहले मैंने एलिमेंट्स लिख दिया.
क्योंकि मेरा बहुत ऊपर है ना एलिमेंट्स, इसके लिए। -4, -19, 13, -4, -19 एंड 13, ये मेरे माइनर्स आए थे। इसको मैंने सॉल्व करना है अभी। सो 24, 0 into anything becomes 0, and 13 fours are 52. And if you solve this, 12 minus 4, 8, 4 minus 2, 2. So the subtraction is -28, which is equal to value of A. And this is equal to RHS. Hence verified the first problem. Right? Similarly, we will do the second one now. B. Left hand side. So B का left hand side क्या है देख लेते हैं. It is A21, C21, A22, C22, A23, C23. So let us substitute. 2122 604 था, तो ये 6 है, ये 0 है और ये 4 है. बाकी का हम सब्सिट्यूट करेंगे. माइनर्स के बाद को फैक्टर्स है 4 -19 -13, 4 -19 -13, 6 4s are 24 plus 0 minus 52. And again, if you solve this, it is going to be -28, which is value of A, and that is going to be right hand side. So we proved both of these. Everyone understood? Okay. Now actually, these last two problems which we have verified, right, uh, is actually a property, we can say, because don't you think that it directly gives the value of the determinant, right? डिटर्मिनेंट का वैल्यू के लिए हम लोग ने इतना सारा मेहनत किया, तो ये डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है, ये भी डायरेक्टली वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देता है. तो समटाइम्स द क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस वे, find the value of the determinant by expanding, second row, by expanding third row. This is the example of uh, finding the value of the determinant by expanding second row with minors and second row with cofactors. इसको याद कैसे रखना है, बहुत ही सिंपल है. पहले मैं कोफैक्टर का बताता हूँ. आपको अगर क्वेश्चन आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट यूजिंग द सेकेंड रो, ओके, सेकेंड रो का यूज करना है आपको. सो व्हाट वी विल डू, सेकेंड रो का यूज करना है, तो ये फॉर्मूला है उसका बस. A21 C21 A21 A22 A23, उसके साथ करस्पॉन्डिंग माइनर, उसके साथ करस्पॉन्डिंग माइनर ले लो. अगर सॉरी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लो, सॉरी. बट अगर हमको माइनर का यूज करना है, तो A21 A22 A23 के साथ करस्पॉन्डिंग माइनर ले सकते हैं, बट फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा लिखना पड़ेगा. नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. यस, समझ में आ रहा है? अगर मैंने एलिमेंट्स के साथ माइनर्स को लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लिखेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट. एंड अगर हमने को फैक्टर लिया तो सारे पॉजिटिव होने चाहिए. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल.
If minor not given, cofactor not given, and they are asking by this, so we have to find first. We will have to find out that, because see, they are not asking us to find out the determinant by normal method, Jayashree. If it would have been just find the determinant, then we can use that expansion which we have done yesterday. Uska use kar sakte and then we can solve it. Now they want purposely that I should use second row only to find out. So I have to find out minus and cofactors, and then only I can expand them and I can get the answer of this. Okay. There are a few solved examples also, I hope, of this kind. See here, solved example 3. देखो, find the value by expanding second row. ठीक है. सो एक्सपांडिंग सेकेंड रो, तो देखो हमने वही यूज किया, को फैक्टर्स वाला, A21 C21 A22 C22. तो A21 A22 A23 तो एलिमेंट था, और C21 वो लोग ने माइनर्स करके उसको फाइंड किया. इतना क्यों डिफिकल्ट करना है, अलग से फाइंड करो ना माइनस एंड को फैक्टर्स, जैसा हमने किया. हाँ, अलग से हम माइनर फाइंड करेंगे, को फैक्टर फाइंड करेंगे, और इसके अंदर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये हुआ सेकेंड रो. अब यहाँ पर एक थर्ड कॉलम. अभी थर्ड कॉलम का कैसा होगा, तो सेम जैसे हमने रो से किया वैसे कॉलम से कर दो. कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे, A13 A23 A33. देखो कॉलम कैसे होता है, ये वाला एलिमेंट होता है GA11 F, यस, ये सॉरी ये 13, ये 23 और ये 33. तो इसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर्स लिख दिया, C13 C23 C33. समझ में आया क्या आप लोगों को. तो माइनर का यूज ही नहीं करने का, क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव करना पड़ेगा. को फैक्टर इज मच इजियर ना. तो अपने पास एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका चलो बताओ. फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट एक्सपांडिंग द थर्ड कॉलम. Expanding the third column. So I'm just writing the formula. I'll not be solving, that will be homework for you. So what will be the value of the determinant then? So value of the determinant will be, थर्ड कॉलम बोला है, तो A13 A23 A33. ठीक है, थर्ड कॉलम के यही एलिमेंट्स होते हैं ना. सो कॉलम विल बी फिक्स्ड, रो विल चेंज, और उसके करस्पॉन्डिंग में को फैक्टर्स C13 C23 and C33. We will add them. तो इसके पहले हम पहले माइनस फाइंड कर लेंगे. C1 M13 M23 M33, राइट. पहले हम ये सब फाइंड करेंगे. M11 सॉरी M13 M23 M33. फिर इसका यूज करके C13 C23 C33. फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करके हम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट निकालेंगे. और आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि वेदर यू आर राइट और रॉन्ग. आप नॉर्मल वे से डिटर्मिनेंट फाइंड करके आप उसको वेरीफाई कर सकते हो. ओके, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दिस. So here we have completed the first exercise of chapter determinant.
Okay, done. Fine. Moving ahead to the next part of this chapter, that is called as properties of determinants. Properties of determinants. What is the answer? -2. Yes, प्रीवियस क्वेश्चन का -2 आ गया आंसर. हर्षित ने सॉल्व किया है. चलो, वेरी गुड. Okay, so let us start. Heading डालो, properties of determinants. Properties of determinants. Okay, right now the first property, property number 1. Copy this. The value of determinant remains unchanged if its rows are turned into columns and columns are turned into rows. Write down this. Property number 1. First, you should have a heading of properties of determinants in the first property. If rows are turned into columns and columns are turned into rows, the value of the determinant does not change. Let us see the verification of the same. Here is a determinant D. Okay. Now, if I find out the determinant of this D, find out the value of this determinant, then it will be like plus minus plus. तो प्लस ए 1 माइनस बी वन एंड प्लस सी वन दिख रहा होगा आपको. फिर जैसे हम करते थे ना, इसको और इसको हाइड किया, तो फिर बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू. क्लियर. फिर इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, तो ए टू सी थ्री एंड ए थ्री सी टू. और लास्ट में सी वन के लिए इसको और इसको हाइड किया, तो ए टू बी थ्री एंड ए थ्री बी टू. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस डी पार्ट? डी पार्ट, यस. फाइंड किया नॉर्मल मेथड से. ठीक है. ओके, नाउ सी डी वन. डी वन में क्या किया? पहला ओरिजिनल डिटर्मिनेंट ये था. डी वन में क्या किया? ये फर्स्ट कॉलम जो था ए वन ए टू ए थ्री, इस फर्स्ट कॉलम को मैंने फर्स्ट रो के साथ इंटरचेंज किया. कैन यू सी दैट? ए वन ए टू ए थ्री कॉलम बिकम्स फर्स्ट रो ए वन ए टू ए थ्री, and the row a1 b1 c1 becomes the column. बाकी के ये 4 एलिमेंट्स इज सेम. नहीं, उसको भी चेंज किया शायद. यस, सारे रोज को चेंज कर दिया कॉलम से. a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3. Right? Then you find out the determinant. Then you will observe that the value of these two determinants is exactly same. अभी आपने बहुत सारे सम्स डिटर्मिनेंट के फाइंड किए, राइट? तो आप क्या करना, घर पे आपने ऑलरेडी एक डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, तो रोज को कॉलम से इंटरचेंज कर दो. सारे रोज, हाँ, एक नहीं, 1 2 3 रोज को 3 कॉलम्स में लिख दिया.
तो जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा ना उसका वैल्यू फाइंड करना, तो आपको वही वैल्यू मिलेगा जो पहले का आंसर था. So I think everyone understood the first property of the determinant. Let us see the live example here. ये a वैल्यू था, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, कितना आया -17. इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए, 1 2 -1 को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, देखो 3 -1 2 सेकेंड कॉलम, 0 2 1 थर्ड, और उसको भी सोल्व किया तो फाइनल आंसर क्या आया. Don't go into the solution. How? We know how to solve it, right? Understand the property. -17, -17. So A is equal to A1. So if you interchange rows and columns, all the three rows are interchanged with all the three columns, value of the determinant is unchanged. Clear? Fine. Write down property number 2. You directly write property. Yes, it's compulsory that all three should be changed. 3 rows should be changed with 3 columns. Then only that property holds. Rows change converted into columns and columns converted into rows. That means all rows and all columns should interchange themselves. Now property number 2. It says if any two rows, ध्यान से देखो, फिलहाल ये कॉलम को भूल जाओ. If any two rows of the determinants are interchanged, then the value of the determinant changes its sign only. प्रॉपर्टी नंबर 2 में मैं किसी रो को कॉलम से इंटरचेंज नहीं कर रहा हूं. आई एम नॉट इंटरचेंजिंग, आई एम नॉट कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, बट इफ आई चेंज टू रोज अमंग देमसेल्फ, लाइक रो 1 को मैंने रो 3 बना दिया और रो 3 को मैंने रो 1 बना दिया, ऐसा चेंज हुआ, तो पहले का जो आंसर था और अभी का जो आंसर आएगा वो उसमें केवल साइन का चेंज होगा. मतलब अगर पहले का आंसर 15 है तो ये -15 हो जाएगा, पहले का आंसर -10 है तो ये +10 हो जाएगा. रोज चेंजिंग अमंग देमसेल्फ. सिमिलरली कॉलम कॉलम से चेंज हुआ, 2 कॉलम्स, मैंने कॉलम 1 को कॉलम 3 के जगह लिख दिया और कॉलम 3 को कॉलम 1 के जगह पे लिख दिया, तो भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट is changed by sign only. I hope everyone understanding मैं क्या बोल रहा हूँ. Row is not changing to column, column is not changing to row, row is changing with row, column is changing with column. Whenever we want to change, we use this symbol. Ri interchanges with Rj. अगर मैंने लिख दिया R1 R3 लिखा, इसका मतलब R1 इंटरचेंजिंग विद R3, तो रो 1 पूरा रो 3 के अंदर चला गया और रो 3 रो 1 के अंदर चला गया. तो ये इसका एक सिंबल है. इस तरीके से हम इंटरचेंजिंग रोज एंड इंटरचेंजिंग कॉलम्स बताते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? So you would have written this property number 2 now. Now let's see property number 3. Very, very important. Don't read this column again. If any two rows of a determinant are identical, then the value of the determinant is 0. Yes, शॉर्टकट मिल गया अपने को. अगर किसी डिटर्मिनेंट का मुझे वैल्यू फाइंड करना है और हमने देखा कि जो दो रो है वो दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, एग्जैक्ट सेम है, आपको एक्सपांड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0. वैसे ही रो की जगह अगर कोई दो कॉलम एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है, तो वी डोंट हैव टू एक्सपांड द डिटर्मिनेंट एंड सॉल्व, डायरेक्टली द आंसर विल बी 0. यस, रोज इक्वल टू कॉलम नहीं. अगेन डोंट मिस इंटरप्रेट मी. रोज इक्वल टू रोज, वन रो इक्वल टू अनदर रो, या तो ऐसा होना चाहिए या तो वन कॉलम इक्वल टू अनदर कॉलम, then the value of the determinant is 0. ऑर्डर वाइज भी सेम होना चाहिए, मतलब
ऑर्डर वाइज आई डेंट गेट यू जयश्री. सी अगर वो 2 by 2 का है तो उसमें चांसेस है कि 2 ही रो होंगे या 2 ही कॉलम होंगे ना. तो उसमें R1 R2 हो सकता है सेम, या तो C1 C2 हो सकता है सेम, राइट. अभी 3 रहेंगे. एनी 2 रो, यस एनी 2, ऑल 3 नहीं. साइशा का क्वेश्चन, इफ ऑल कॉलम्स आर सेम देन ऑल्सो. सो इफ ऑल 3 आर सेम, सो कैन आई से ऑल 2 आर सेम. सी जीरो करने के लिए 2 सेम होने चाहिए. तीनों सेम है तो उससे अपने को क्या फर्क पड़ता है, 2 तो सेम है ना, तो 0. यू अंडरस्टैंडिंग. Jayashree saying -3 -2 1 can be -2 -3 1. No, they are not same. Acha, you were talking about this order because see, elements. If I write 1 here and I write 1 here, they are different na. This is 1 1 position, this is 3 3 position. तो सेम का मतलब 1 2 -1 है, तो मुझे 1 2 -1 ही मिलना चाहिए अगर रो को सेम कर रहा हूं तो. 2 -1 3 है तो फिर 2 -1 3 मिलना चाहिए, तो ही हम उसको सेम कंसिडर करेंगे. कहीं भी सेम है ऐसा नहीं है. अभी जैसे तुम बोलोगे कि सर इधर 1 2 है, इधर भी 1 2 दिख रहा है, अभी इधर -1 नहीं इधर 0 होता तो क्या ये सेम हो जाता? नहीं, ये दोनों सेम नहीं होता, बिकॉज इज 1 2 0 एंड दिस इज 0 2 1. दे आर डिफरेंट. आई थिंक जयश्री's डाउट इज क्लियर, राइट जयश्री? Okay. So property number 3, if any 2 rows are identical, means with order, with pattern, if it is identical, it is 0. Property number 4. Don't read this bracket wala column. Huh? If each element of a row, if each element of a row, a particular row of determinant is multiplied by a constant k, then the value of the new determinant is k times the value of the given determinant. What is the meaning of this? Let me give you an example. Suppose you have a determinant here. Okay. 5 3 2 7. मैंने क्या किया, फर्स्ट रो R1 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया. So what is the new determinant which will form? R1 multiply 2, तो R1 is the first row. 2 5s are 10, 2 3s are 6. बाकी तो सब सेम ही रहेगा ना, 2 7. तो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि ओरिजिनल का जो भी डिटर्मिनेंट होगा, 7 5s are 35 minus 3 2s are 6, that is 30, sorry 29. ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो. 10 7s are 70, 6 2s are 12. Okay, so it will be 58. What do you observe? पहले वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू से इस वाले डिटर्मिनेंट में भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया. समझा? डबल मतलब यहाँ इंटू 2 किया, इसके लिए इसमें 2 हो गया. अगर मैंने यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई किया रहता तो 3 हो गया रहता. सबको ये प्रॉपर्टी समझा? बट किसी वन रो में, हाँ, अभी सपोज मैंने क्या किया रहता, आप अभी मुझे बताना. व्हाट आई एम डूइंग इज, ओरिजिनल जो ये डिटर्मिनेंट है, रो 1 में मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया और रो 2 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया. तो इससे क्या होगा, देखो रो 1 में 5 का मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ऑफ दैट पहले का जो आंसर है उसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा. बट फिर मैंने रो 2 में 3 का भी मल्टीप्लाई किया ना, तो वो 3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? So if any row is multiplied by a constant,
the new determinant form, the value of that determinant will be k times the original one. Okay, I hope you all have understood this. Okay, next. Fifth, if each element of row is expressed as a sum of two numbers, then the determinant can be exposed as sum of two determinants. If each element of a row is exposed as sum of two numbers, then determinant can be expressed as sum of two determinants. तो एक एग्जांपल है कि सपोज यू हैव अ डिटर्मिनेंट एंड एक पर्टिकुलर रो है, उस रो में आपने देखा ये टू नंबर्स का सम है, ये भी टू नंबर्स का सम है, ये भी टू नंबर्स का सम है, ठीक है। तो वी कैन सेपरेट देम लाइक a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, राइट। फिर उसको सेपरेट कर सकते हैं x1 a2 a3, y1 b2 b3, z1 c2 c3, ये दोनों को ऐड करने पर यही आंसर आएगा। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, वी कैन डू दैट। ऐसी अगर ये कॉलम में होता तो कॉलम में भी ऐसा सेपरेट कर सकते हैं हम लोग। सबको समझ में आया? What Arafat you asking? It should be B2, right? B2, where B2? अच्छा यहाँ पर ना, हाँ दैट्स ओके। वो मैं नहीं देख रहा हूँ, चलो अंदर का है वो जाने दो, ठीक है। प्रॉपर्टी 6 नाउ, प्रॉपर्टी 6। आई होप यू आर राइटिंग द प्रॉपर्टी, हाँ, नहीं तो अभी बाद में करोगे, ऐसा नहीं, आपको लिखते जाना है। If a constant multiple of all elements, if a constant multiple of all elements of any row is added to the corresponding element of any other row, then the value of the new determinant so obtained is the same as that of the original determinant. The operation this does not change the value of determinant. Property number 6, I'll explain it to you. Pay attention here. ये एग्जाम्पल देखो, सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है 1 3 2 4। what they are trying to say is you can add you can add two rows. When we talk about rows, then row को column के साथ नहीं, you can add two rows like this. I may write
this determinant A after this operation. The operation is R1 changes to, this is the way we read it. Change R1. How am I changing R1? I am adding R2 to R1. This means this operation, what it will do, it will not change anything in the second row, but in the first row it will be changed and it will be written as R1 plus R2. Okay, so if I apply this operation in A, in the next step what it will become, 2 and 4 will be same, it is second row. फर्स्ट रो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2. तो R1 प्लस R2 मतलब 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 प्लस 4 7 हो गया. ठीक है, ये पहले ये आपको समझा, ये मैंने क्या किया. यहां तक समझा पहले, क्या नहीं समझा प्रेम. R1 is written here, R1 changes to R1 plus R2. मीन्स R1 को चेंज करना है, फर्स्ट रो को चेंज करना है. कैसे चेंज करना है, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड करना है. तो देखो मैंने सेकेंड रो एज इट इज लिखा 2 4, फर्स्ट रो को मैंने चेंज किया. कैसे चेंज किया, R1 प्लस R2 किया. तो 1 प्लस 2, क्योंकि ये फर्स्ट रो है ये सेकेंड रो है ना, तो फर्स्ट रो को सेकेंड रो के साथ ऐड किया. 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7. यस, ओके. अभी सेम ए है, अभी मैं एक दूसरा ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं. मैं बोलता हूं R1 चेंजेस टू 2 टाइम्स R1 प्लस 3 टाइम्स R2. अंडरस्टैंड हियर नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ए क्या बन जाएगा, देखो व्हाट ऑपरेशन आई एम अप्लाइंग हियर. I am changing R1. This tells that where is the change. This tells that where is the change. R1 is changing. So R1 is changing means there is no change in the second row. तो मैंने तो second row को as it is लिख दिया. अभी फर्स्ट रो में क्या चेंज हो रहा है, डबल ऑफ R1 करने का, ट्रिपल ऑफ R2 करने का और फिर ऐड करने का. तो देखो डबल ऑफ 1, 2 1s are 2, 3 2s are 6. So 2 plus 6 will become 8 here. Yes, yes, come on. ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 1, 2 1s are 2. Second row 2, 3 2s are 6. 6 plus 2 is 8. Yes, Jayashree, how did you get to a 27 dear? 27 कैसे आएगा? It will be 8. Similarly, for this element now. देखो ये रो है, तो रो में ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट है. फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऑपरेशन किया, अभी सेकेंड एलिमेंट के साथ. 2 3s are 6. रो 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 3s are 6. इसमें 3 का मल्टीप्लाई, 3 4s are 12. तो 6 प्लस 12 इज 18. ये ऐसा चेंज हो जाएगा. Yes, fine. Let me apply one more operation. This time
in R2? ओके, R2 को मैं कैसे चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखो बच्चों। R2 is changing to R2 minus R1/2। थोड़ा डिफिकल्ट ऑपरेशन लिया हमने। अभी चेंजेस किसके अंदर हो रहा है स्टूडेंट्स? चेंजेस किसके अंदर हो रहा है? R2 के अंदर हो रहा है। तो इसका मतलब मैं R1 को तो वैसे का वैसा ही लिखूंगा दिस टाइम। तो R1 मेरा क्या है, 1324 है, तो 13 ऐसी रहेगा। मैं रेफरेंस के लिए डिटर्मिनेंट यहीं पर लिखता हूँ, बार बार लेफ्ट साइड में स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो मैंने लिख दिया। अभी ध्यान से देखो, आई एम गोइंग टू चेंज द सेकेंड रो। सेकेंड रो इज दिस। अभी सेकेंड रो का सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट चेंज होगा। कैसे? R2 से R1/2 करो। तो पहला एलिमेंट क्या है इसका? 2, तो R2 इज 2 माइनस R1/2, उसका विथ रिस्पेक्ट टू में R1 क्या है? 1, तो 1/2। So 2 2s are 4 minus 1, it will be 3/2. Yes, everyone understood 3/2 कैसे आया? थोड़ा सा वापस से दिमाग लगाओ और सोचो। सबको समझ में आया? R2 is 2 and R1 is 1। अब ऐसे ही दूसरे वाले रो के लिए, मतलब सेकेंड एलिमेंट के लिए, R2 is 4 माइनस R1/2, उसके विद रिस्पेक्ट टू में R1 3 है, सो 3/2। 2 4 जा 8, 8 minus 3, 5/2। फाइन। अभी ये मैं क्या कर रहा था कब से, उसके बारे में देखते हैं अभी हम लोग। डू वन थिंग, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट? फर्स्ट ए का क्या होगा? और इन सबको ए नहीं बोलेंगे ना, इसको तो डिफरेंट नेम देना पड़ेगा। दिस इज A1, A2 बिकॉज आई चेंज इट ना, A3। ओके, what is the value of a? Come on. So it is going to be 4 minus 6, it is going to be minus 2. Find out the value of a1 now. 3 4s are 12, 2 7s are 14. 12 minus 14 minus 2. Value of a2. 8 4s are 32, 18 2s are 36. Right? So it comes minus 4. Here 5/2 minus 3 3s are 9/2. So 5 minus 9 minus 4/2, so it is going to be minus 2. सेकेंड वाले का डिफरेंट आ रहा है, तो वी नीड टू चेक द ऑपरेशन, कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने? 2R1, तो 2 1s are 2, 3 2s are 6, so 2 plus 6 is 8, that's right। 2 3s are 6 and 3 4s are 12। Yes, right। Now what do you observe here?
व्हाट डू यू ऑब्जर्व हियर? प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा था, विल रीड इट अगेन नाउ. If a constant multiple of all the elements of any row is added to the corresponding elements of any other row, then the value of the new determinant obtained is the same one. फर्स्ट A1 और A3 क्यों सेम आया? क्योंकि मैंने R1 में 1 टाइम्स R2 ऐड किया, R2 में मैंने -1/2 टाइम्स R1 ऐड किया, बट मैंने R1 में ही ऐड किया ना, R1 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया, R2 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं किया. यहां पर क्या हो गया, मैंने R1 को चेंज किया, बट R1 के साथ क्या कर सकते हैं हम, R1 के साथ मैं किसी दूसरे का मल्टीप्लाई कर सकता हूं, बट ये R1 को मैं चेंज नहीं कर सकता. समझ में आ रहे हो क्या? यस. तो अगर मैंने अभी देखो, मैं 4-5 ऑपरेशन लिखता हूँ, ये सारे ऑपरेशंस पॉसिबल होंगे, उसमें कभी भी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा. जैसे मैंने लिखा R1 चेंजेस टू R1 प्लस 100 टाइम्स R2, मैंने लिखा R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5/7 टाइम्स R1, ये सबका डिटर्मिनेंट सेम आएगा. क्यों? R1 के अंदर मैं कांस्टेंट किसी दूसरे रो का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R2 के अंदर मैं किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो दे विल हैव द सेम डिटर्मिनेंट. समझ में आ गया? इसके लिए ये डिफरेंट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस 2R1, और ये दोनों सेम आ रहा है. सो यही ये प्रॉपर्टी बोलता है, प्रॉपर्टी नंबर 6. देखो आर आई लिखा तो इधर आर आई है ना, के टाइम्स आर जे, मतलब जो दूसरा रो उसके साथ ऐड करेंगे या जो दूसरा रो उसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका कॉमन मल्टीपल हम लोग ले सकते हैं. क्लियर? ओके. नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी के लिए ये कंसेप्ट पहले हमको पता होना चाहिए. मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट. डायगोनल ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब द एलिमेंट्स वेयर I इज इक्वल टू J. मतलब अगर मैंने 2/2 का मैट्रिक्स लिया, सपोज I took a matrix of 2/2, 5 3 2 1, then we know that this is A11, this is A12, this is A21 and this is A22. तो ये A11 और A22 डायगोनल एलिमेंट्स है. ये रेक्टेंगल जैसा नहीं होता है कि रेक्टेंगल में दो डायगोनल होते हैं ऐसे और ऐसे, इसमें नहीं. A11 A22 ये दोनों डायगोनल नहीं है. क्यों? 1 2 2 1 डिफरेंट है ना. क्लियर? वैसे ही 3/3 रहेगा तो ये वाले जो एलिमेंट रहेंगे ना, ये डायगोनल होंगे, क्योंकि ये 1 1 होता है, ये 2 2 होता है और ये 3 3 होता है. सबको मतलब समझ में आ रहा है डायगोनल एलिमेंट्स का? सो वेयर I इज इक्वल टू J, yes, they will be equal. Not they will be equal, and we are not talking about they'll be equal. We are just talking about which elements in the determinant are called as diagonal elements. तो अगर मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखा this, and if I ask you कि what are the diagonal elements in the first matrix, so you will simply tell that diagonal elements in the first matrix are 1 and 2. What are the diagonal elements in the second matrix? It is 5 3 and 2. That's all. They are equal not equal वो बात नहीं कर रहे हम लोग. We just we are finding out what are the diagonal elements in the given determinant. Okay, Jayashree?
Fine. So this is all about diagonal determinants. Now there's a property related with this, property number 7 last, which is also called as a triangle property. ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एकदम ध्यान से देखो बच्चों. If each element of determinant above or below the main diagonal element is 0, then the value of the determinant is the product of its diagonal elements. समझ में आ रहा है? देखो ये दो डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो. डायगोनल के बिलो जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर वो 0 है, और डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स अबव अगर वो 0 है, आइदर बिलो 0 होना चाहिए या तो अबव 0. अगर ऐसा है तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स. Understanding, students? This is property. Directly we have to use it. If you find out such determinant, you come across such determinant where the all elements below the diagonal are 0. Prem Soni, all are 0 or any one may be 0. All are 0 na, see na hai. Clearly we may. If each element of the determinant, each means all element of the determinant above the diagonal or below the diagonal, if they are 0, then the value of the determinant is the product of the diagonal elements. Okay? ये जो रिमार्क में है इसको प्रॉपर्टी नहीं बोला, बट प्रॉपर्टी जैसा ही है ये भी. क्या लिखा है देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी रो और एनी कॉलम इज 0, मतलब आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, वो डिटर्मिनेंट में कोई रो है जिसके सारे एलिमेंट 0 है, एक पर्टिकुलर रो, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर 0 ही आने वाला है. एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसके सारे एलिमेंट 0 है, सो द आंसर विल बी 0 ओनली. अंडरस्टूड? व्हाई? यूजिंग प्रॉपर्टी 7 ओनली. देखो अभी सपोज मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया 1 5 3 0 0 0 1 2 3. ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, आप नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी आंसर इसका 0 आएगा, बट प्रॉपर्टी का यूज करोगे, सिंस वन रो इज 0, सो द आंसर विल बी 0. Jayashri Jajin, then what about 2 are zeros? 2 zeros रहेगा तो we can't say that all are 0. Then we have to solve. We have to expand. If अगर 3 by 3 का है तो all 3 should be 0. 2 by 2 का है then 2 is 0. तो बाकी कुछ भी रहने दो, आंसर will be 0. Clear? Okay. Fine. So this was all about the properties of determinants. Okay, all clear, students, right? All the properties. अभी आप लोगों ने बहुत मेहनत कर लिया, मेरे को इतने देर तक सुना आप लोगों ने, ठीक है. बट देयर इज अ गुड न्यूज फॉर यू ऑल, राइट? अभी दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, उनके लिए गुड न्यूज नहीं है, बट डेफिनेटली दोज हु आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर जेडब्ल्यू, अगर वो नीट वाले स्टूडेंट्स हैं या सीटी वाले स्टूडेंट्स हैं, सीटी वालों को भी पढ़ना पड़ेगा. ओनली फॉर दोज हु आर नॉट गोइंग फॉर जेडब्ल्यू और नीट, उनके लिए ये है कि this year because of COVID-19, the syllabus is reduced, right? The syllabus has been reduced. So for entrance, so you have to study everything. Everything means everything.
whatever we are going to learn in 11th and 12th, entire maths, everything you have to study. But for college examination, for board examination, this part is removed from the syllabus for this particular year. So for college exams, this part will not come. जब भी कॉलेज स्टार्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल होगा या जो भी होगा, दिस पार्ट मतलब प्रॉपर्टीज वाला पार्ट, नॉट डिटर्मिनेंट पार्ट. ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, बिकॉज डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ही एक है जो थोड़ा डिफिकल्ट है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, यूज कैसे करना है. तो ये जो पूरा आज हमने 7 प्रॉपर्टीज किया, ये सबके सब कॉलेज एग्जाम के लिए ओमिटेड है. इसका पूरा एक्सरसाइज ओमिटेड है, कुछ नहीं करना है फॉर कॉलेज एग्जाम्स. समझ में आ रहा है? जेडब्ल्यू वालों को भी क्या करना है, इसमें से प्रॉब्लम्स तो नहीं करना है, बट जो मैंने प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, वो आपको पता होना चाहिए. उसका एप्लीकेशन होता है जेडब्ल्यू में क्वेश्चंस. ये पहले बोल देता तो आप लोग इतने फोकस से मुझसे सुनते नहीं है 7 प्रॉपर्टीज. इसके लिए मैंने बोला कि एटलीस्ट पहले आप लोग सुन लो, फिर मैं बाद में बताता हूँ. नीट में मैथ्स नहीं होता मनोज, उसमें कैसे आएगा, है ना? बट आपने भी पढ़ा तो थोड़ा तो कुछ आज ब्रेन्स चला रहेगा ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग था, राइट? ओके, अभी तुम बोलोगे कि सर अभी एक्सरसाइज मत कराओ, फिर अभी आपने बता दिया, आपने गलत किया अभी बता के, एक्सरसाइज के बाद बताना चाहिए था. अभी तो हम एक्सरसाइज में ध्यान नहीं देंगे, है ना? फॉर थियरी टेस्ट दिस एक्सरसाइज विल नॉट कम फॉर थियरी, ओके. बट एमसीक्यूज है जो सीईटी या जेडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे, उनके लिए रहेगा. बट इवन इन क्लास टेस्ट वी विल नॉट आस्क दिस एक्सरसाइज, बिकॉज इसका ना 12th में कोई यूज नहीं है, ठीक है? 12th में किधर भी ये प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आने वाला नहीं है. नहीं तो नहीं भी रिमूव भी रहता तो भी मैं आपको पढ़ाता. जैसे देखो ट्रिगो 1 ट्रिगो 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस रिमूव्ड है, मैंने आज तक बोला, आज बोल रहा हूँ. बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें अंदर रिमूव्ड है, बट वो रिमूव होने दो, वो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि आगे के बहुत सारे चैप्टर में वो यूज होने वाला है 12th में. सो दैट पार्ट वी हैव टू डू इट. बट इसका इतना यूज नहीं, जितना डिटरमिनेंट अपने को चाहिए ना, वो आपने 4.1 में पढ़ लिया, ठीक है? और अभी एक एक्सरसाइज है 4.3, वो उसमें थोड़ा यूज करेंगे. बाकी ये जो सेकेंड एक्सरसाइज है, ये अपने को करने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर्टीज भी याद रहा तो दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो आप लोग को बहुत मजा आया रहेगा प्रॉपर्टीज पढ़ने में, ठीक है? अभी हम लोग थर्ड एक्सरसाइज का जो थियरी है वो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. फाइन, लेक्चर इज स्टिल 4 o'clock राइट, नॉट 3:30 ना? नहीं तो कुछ बच्चे सोचते रहेंगे कि एक्सटेंड हो रहा है या 4 o'clock ना, आई होप कि 3:30. अच्छा 3:30 तक ही था, सॉरी, आई थॉट इट्स 4. Fine, no problem. So anyways, we have completed the properties of the determinants. Next time, we will start with the third part. Okay, that is the Cramer's rule. You have already done it in class 10. So we will use that and we'll solve the last exercise. So second exercise we are not solving as it is removed from your board examination for your college examination. But for entrance point of view, we have learned the properties. Okay? Thank you so much, students. Take care. Bye-bye.